We live in an age of science. In the age of science, we try to find a reason for every phenomena. Science is an ongoing journey in which things are invented and discovered every step of the way. But there are certain occurrences that cannot be fully explained by science yet. In this documentary, we will meet ordinary people experiencing extraordinary phenomena. And we will explore both the science and spirituality behind meditation. To examine the spiritual side of meditation, we will meet a guru who is not only devoting his life to heal people, but also believes that yoga is not just a physical exercise. He claims that his powerful lesson was taught to him by his guru, Shri Nathji. And to investigate the scientific side, we will speak with the scientists, doctors, and professors who have been researching the effects of meditation on human body. Meditative practice is not something in the mind, some wishful thinking or something. Some people tend to think in these terms, but it goes to the very core, very bottom, very foundation of our physiology, which is the genetic material. One of the things we've found that I think is very intriguing with the effects of meditation is the changes that we talked about with expression of cytokine genes in the tissue. My name is Jayan Goswami. I am not affiliated with any association shown in this documentary. I created this documentary to present an unbiased investigation. We started our journey at a city in northwestern India called Bikaner. I grew up in this city, and that is where I came across this unconventional approach to yoga. We left Bikaner at around 6 in the evening to visit an ashram where hundreds of people practice meditation. Next day began in a beautiful sun city, Jodhpur, the land of kings and forts. After a shaky drive over windy roads, we reached to a very peaceful place just outside the rush of downtown Jodhpur to talk to people who believe that meditation is curing them. The Adhyatm Vigyan Ashram. A family in which 3 out of 4 are HIV positive and believe that meditation is helping them. हाँ जी, मेरा नाम खेराम डूडी है। मैं ग्राम कागल का रहने वाला हूँ, भोपाल तहसील जोधपुर। मुझे HIV पॉजिटिव है। हॉस्पिटल में भर्ती हुआ 2008 को, मुझे पता चला, चेक करवाया राजस्थान हॉस्पिटल में जोधपुर। वहाँ से रिपोर्ट आई 3 दिन से। फिर बीकानेर 18 तारीख 11/2008 को बीकानेर में दीक्षा ली गुरुदेव जी की। जीवनाथ जी सर ने बताया, मेरे जीजा जी लगते हैं, वो जिप से अपनी जिप से लेकर गए वहाँ से दीक्षा लेके 25 तारीख को और दीक्षा ली, बच्चे बच्ची घरवाली ने सब ने। उससे हम गुरुदेव से जुड़े हैं उस दिन से। 18/11/2008 से वो आज तक रोज ध्यान कर रहे हैं और ध्यान करता रहूँगा।
और जोधपुर का रहने वाला हूँ। मैं भारतीय नौसेना में कार्यरत था। 22 अप्रैल 2008 को मैं रक्तदान के लिए गया, तो वहाँ पे मुझे HIV पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ। उसके बाद मैंने जे हॉस्पिटल और 1-2 हॉस्पिटल में और टेस्ट करवाया, वहाँ पे भी मेरा HIV पॉजिटिव आया। साइंस बैकग्राउंड का होने के कारण धर्म में और जो कर्म की इस तरह की बातें हैं, इसमें मैं विश्वास नहीं करता था। लेकिन 97 में गुरुदेव का बाड़मेर में कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में किसी ने बताया कि गुरुजी आए हैं, कुछ चमत्कार दिखाते हैं। चमत्कार की जिज्ञासा में मैं वहाँ देखने के लिए चला गया। तब देखा तो कई लोगों का मूवमेंट हो रहा था, हाथ हिल रहे थे, पाँव हिल रहे थे, गर्दन हिल रही थी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोग मंत्र जप कर रहे हैं और ये इस तरह से मूवमेंट कैसे हो रहा है। मंत्र मैंने भी सुना गुरुदेव के मुँह से, घर आके करने की कोशिश की, कोई मूवमेंट नहीं था मेरे शरीर में। We spent a day meeting and interviewing people while visiting the Jodhpur ashram. At night, we left for Ahmedabad to meet the man behind the ashram to learn about his special yogic teaching. The next morning, we arrived in Ahmedabad. मैं जो मंत्र देता हूँ उससे साधक की कुंडलिनी जाग जाती। समझे? जैसे आप नवरात्रि में पूजा करते हैं दुर्गा की, सीता कह दो, राधा कह दो, पार्वती कह दो, हम योगियों ने उसको कुंडलिनी नाम दे दिया। और रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से में, बेसमेंट में, सैक्रम में 3.5 आटे लगा करके दुब को अपने मुंह में छिपाए रहती है, दबाए हुए रहते हैं, गवर्नमेंट पोजिशन में रहती है। मैं जब दीक्षा देता हूँ तो वो जाग जाती है और सीधी खड़ी हो जाती है। भारतीय योग दर्शन में योग के 8 अंगों का अनुष्ठान बताया है पातंजलि ऋषि ने। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो धारणा, ध्यान और समाधि ये सूक्ष्म अंग। जागृत कुंडलिनी सारी योगिक क्रियाएं स्वयं अपने अधीन करवाती है। जितने भी सिस्टम्स हैं, सारे सिस्टम्स को एक साथ स्टिमुलेट करती है, डेवलप करती है। According to Hindu philosophy, each human being has a feminine energy force known as the Kundalini. Kundalini is interpreted as a snake which resides in the dormant state inside the largest and the lowest vertebrae called the sacrum. When Kundalini releases its tail from its mouth, this state is considered to be awakened state. In awakened state, Kundalini starts moving upwards, gradually penetrating and awakening different chakras located in different parts of the body. It is believed that Kundalini can be awakened in different ways, including an initiation by a spiritual guru. Hindu philosophy is not the only one that mentions the concept of Kundalini, but in fact, it has also been mentioned by the history of other countries, including Egypt, that tells about ancient Egyptian pharaohs. Siddhyog meditation can be quite an extraordinary experience. During meditation, many people experience involuntary activities that range from physical yogic movements, also known as kriyas, to emotional and psychological activities. Many of them also explained that the yogic postures they undergo have an uncanny resemblance to the postures explained in yogic scriptures. मैं 2 साल से गुरुदेव के मंत्र दीक्षा लेने के बाद योग कर रहा हूँ और योग क्रिया आप खुद की खुद होती है, मैं उसके कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ और उससे मेरे को खूब आनंद मिलता है और मेरा पारिवारिक जीवन भी इससे बहुत बढ़िया चल रहा है। मुझे कोई दर्द भी नहीं होता है और हम सुखी हैं। मेरे जो योगी क्रिया हो रही थी वो अपने आप हो रही थी और मुझको मालूम था ये किस प्रकार से हो रही है और मैं रोकना चाह रहा था, लेकिन फिर भी ये योगी क्रिया रुक नहीं रही थी। योगिक क्रियाएं अपने आप हो रही थी, बिल्कुल मैं अपने शरीर को खींच के पकड़ के बैठी थी, लेकिन योगिक क्रिया अपने आप मूवमेंट हो रहा था। जहाँ मेरे गर्दन में दर्द था
वहाँ अपने आप मेरी मूवमेंट हो रही थी और गर्दन पहले से अच्छी तरह से घूमने लगा। रोकने के बाद भी वो रुक मेरे को, मैं जब ध्यान करने बैठता हूँ तो अपने आप अलग अलग तरह की योगिक क्रिया होती है, जैसे शीर्षासन होता है, मयूरासन होता है, वज्रासन होता है, ऐसे ऐसे आसन होने लग जाते थे। इसमें जब आसन होते हैं तो मेरे को पता चलता है कि आसन हो रहे, मगर मेरा उसमें कोई कंट्रोल नहीं होता है। मैं रोकना चाहूँ तो भी रुकते नहीं। और ऐसे कोई बार तो ऐसे आसन हो जाते थे कि जो बुक्स में भी मैंने नहीं देखे थे पहले, इस तरीके के आसन हो जाते थे। फिर बाद में जब मैं व्यायाम की ये सब बुक्स मेरे नॉलेज में आया तब पता चला कि ये आसन को ये बोलते हैं, ये आसन को ये बोलते हैं। और जो मेरे को नॉलेज नहीं आता वो भी अपने आप आसन होने लग जाते हैं और इसमें मेरा कोई मतलब कंट्रोल नहीं रह पाता। उसके बाद मेरी तबीयत खराब होने लगी, लूज मोशन, वेट लूज और बुखार आने लगा और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया। तो दिनों दिन मेरी तबीयत गिरने लगी। तो मुझे 27 मई 2008 को एक मेडिकल असिस्टेंट अर्जुन सिंह जी मिले। उन्होंने मुझे गुरुदेव के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आप इस तरह से ध्यान करोगे तो ये बीमारी ठीक हो जाएगी। तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। मैंने बोला कि भाई डॉक्टर साहब भी बोल रहे हैं इसका कोई इलाज नहीं है, तो इस फोटो से क्या होगा। लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मौत सामने खड़ी थी, तो मैंने फ़ोटो से ध्यान करना शुरू किया। 15-16 दिन बाद में मुझे स्वतः प्राणायाम होने लगे और फिर तरह तरह की योग क्रियाएँ, आसन, बंद मुद्राएँ अपने आप होने लगी और उससे मेरा स्वास्थ्य ठीक होने लग गया। अक्टूबर में मैंने दीक्षा लेने के बाद अक्टूबर 2009 में वायरल लोड टेस्ट करवाया, जिसमें मेरा वायरल लोड 4,85,591 था। जब डॉक्टर साहब ने जब मेरी रिपोर्ट देखी तो उन्होंने बोला कि आपका वायरल लोड बहुत ज़्यादा है और आपको कभी भी कोई अटैक आ सकता है और उससे आप फिर रिकवर नहीं होगे। तो उन्होंने मुझे दवाई लेने के लिए एडवाइस किया और उन्होंने मेरी केस शीट पे दवाइयाँ लिख दी। तो मैंने गुरुदेव को बोला, उनको डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर साहब मैं ध्यान कर रहा हूँ और उससे मुझे पता है कि मैं ठीक हो रहा हूँ और मैं किसी तरह की दवाई नहीं लूँगा। तो उन्होंने बोला कि आप दवाई लो या मत लो, मैं आपकी केस शीट में लिखूंगा। तो उन्होंने मेरी केस शीट में दवाई लिख दी। उसके बाद मैंने ये अनविलिंगनेस टू ट्रीटमेंट का फॉर्म भर के और डॉक्टर साहब के साइन करवाए कि भाई मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहा हूँ, किसी तरह की दवाई नहीं ले रहा हूँ। उसके 9 महीने बाद में मैंने अगेन रिपोर्ट करवाई, ये अपना जुलाई 2010 को। तो उसमें मेरा वायरल लोड 1,61,000 आ गया था। मतलब बिना कुछ दवाई लिए ध्यान से 3,24,000 मेरा वायरल लोड रिड्यूस हो चुका था। लेकिन मुझे चूंकि काफ़ी वर्षों से, वर्ष 71-72 से माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, सर दर्द बहुत ज़्यादा रहता था। इस कारण मुझे लगा कि अगर हो सकता है मेरा भी इस कारण कुछ हो जाए, भला हो जाए। मैंने लगातार ध्यान करना जारी रखा। 7-8 दिन ध्यान करने के बाद में एक दिन मुझे लगा कि मेरा शरीर अपने आप धीरे धीरे पीछे जा रहा है, जैसे कोई मुझे हाथ में पकड़ के लेटा रहा है। और मुझे इस तरह से शवासन लगा। पहले दिन शवासन जब लगा उसके बाद शरीर मुझे हल्का महसूस हुआ। कुछ दिन बाद मुझे लगा कि पहले महीने में 3-4 बार सर दर्द होता था माइग्रेन के कारण, और बहुत ज़्यादा सर दर्द होता था। जब तक उल्टी नहीं होती, गोली नहीं लेता और घंटा पर रेस्ट नहीं करता, वो सर दर्द ठीक नहीं होता था। लेकिन कई दिनों तक सर दर्द नहीं हुआ तो मुझे लगा कि ये इसी कारण गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है, मंत्र जाप से जो मुझे शवासन लगा है, शवासन के कारण वो सर दर्द बिल्कुल चला गया। आज 97 नवंबर के बाद इतने साल हो गए, उसके बाद वापस ऐसा दर्द कभी भी नहीं हुआ। उस दर्द से परमानेंटली छुटकारा हो गया। जब दर्द खत्म हो गया तो मुझे लगा बिना दवाई के, बिना किसी खर्चे के आदमी की इस तरह से अगर बीमारी चली जाए, जिसके लिए डॉक्टर कहते हैं जिंदगी भर आपको ये दवाई लेनी पड़ेगी, तो ये तो मानव सभ्यता के लिए, मानव मात्र के लिए बहुत ही अत्यंत उपयोगी चीज़ है। तब मैं गुरुदेव के आश्रम में नियमित आना शुरू किया। To examine how meditation biologically affects our body, we flew to San Francisco, California, to speak with a doctor and professor who has been researching the biological effects on the human body induced by meditation and yoga. He is also working on advancing our understanding on how to maintain our health in ways that medication alone cannot address.
One of the things we've found that I think is very intriguing with the effects of meditation is the changes that we talked about with expression of cytokine genes in the tissue. Ultimately, a lot of the different ways in which psychological states are translated into physical states in the body have to do with whether genes in our cells are either being turned on or expressed more, or being turned off or decreased in their expression. Deep down, one of the things that differentiates human beings from any other living organisms is their genes. Genes are the unit of inheritance. They also act as an on-off switch for inheriting and controlling various factors in the span of life. Scientists have observed the changes in the genetic expression induced by meditational practices. In the studies that we did in people who were overweight, looking at what was happening in the fat tissue when they added meditation to the kind of diet and exercise program that they were getting, was that we found that some of the genes that are involved in inflammatory responses that may have a whole set of ill effects on their health, those genes were being expressed less in the group that was getting meditation compared to the group that was just getting the standard diet and exercise. So this was, to me, a very exciting finding, showing potentially connections between what people were doing with a meditation practice and what was happening actually in the tissues, in the fat cells, in the expression of these genes involved in inflammatory responses. Our next stop is Oslo, Norway, where we will speak with a professor at the University of Oslo who has also been researching the effects at the genetic level induced by meditation and yoga. Being a molecular cell biologist, I reason that if these changes are occurring in the whole physiology, then there may be a molecular basis for this, which means that at the level of the DNA to RNA to protein, this gene expression level, that there may be some changes. So this is what triggered us to look into this question. And the way we've done this is that we've taken 10 people who had learned a comprehensive yogic program, which includes gentle yoga postures, powerful breathing exercises called pranayama, and a very powerful breathing exercise called Sudarshan Kriya, which includes also meditation. So this is a 2-hour program which is done once a week. What we've done is that these 10 people, they participated in this program 2 days in a row, and then on 2 other days, as a control regimen, instead of doing this, they did a control program where they went for a walk in nature and they listened to relaxing music. And then before they started these practices, either the yogic program, yoga, breathing, Sudarshan Kriya, and meditation, and also afterwards, we took blood from them, and then from the blood, we isolated the immune cells in the circulation, and we compared the gene expression patterns before and after the practice or the control regimen. Based on this
analysis, we found that there were approximately 4 times more genes which were affected by this yogic program, this meditative program, compared with the control regimen, suggesting that this yogic program, meditative program, first of all has significant effects at the gene expression level. So the effects go actually to the very basis of our physiology, to that blueprint, the expression of that blueprint. And secondly, that the effects are more than light exercise and relaxation. We were very intrigued with this result, and now we are engaged in doing follow-up studies. हेलो हेलो, बुद्धाराम जी बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ बोल रहा हूँ सर। बुद्धाराम जी, मैं चयन गोस्वामी बोल रहा हूँ। आपको अगर याद हो तो कुछ वर्षों पहले मैंने आपका इंटरव्यू लिया था गुरु सियाग जी की डॉक्यूमेंट्री के लिए। तो बस में हाँ जी बिल्कुल। और बस के संदर्भ में आपसे मैं बात करना चाहता था। आपका स्वास्थ्य वगैरह कैसे है आजकल? एकदम फिट हूँ सर। बहुत बढ़िया बुद्धाराम जी। और मैं ये पूछना चाह रहा था बुद्धाराम जी कि अगर दिसंबर में हम आपका एक इंटरव्यू और लेना चाहें तो आपके पास समय होगा थोड़ा? बिल्कुल सर, बोल देना, मैं आ जाऊंगा, छुट्टी लेकर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, थैंक यू। और आप आजकल कहाँ पोस्टेड है वैसे? मैं चित्तौड़गढ़ में हूँ, अपना पांचली थाना में चल रही है अभी। बहुत बढ़िया बुद्धाराम जी। और आपका स्वास्थ्य अच्छा चल रहा है ये जान के बहुत ही खुशी हुई। और अब ध्यान आप अभी तो फिजिकल भी ट्रेनिंग में काफी था सर, मतलब 10 किलोमीटर दौड़ भी 44-43 मिनट में कर लेता था आराम से इससे। बहुत बढ़िया। तो बुद्धाराम जी, मैं आपको एक बार इंडिया आके संपर्क करूंगा दिसंबर के शुरू में, और अगर आप थोड़ा सा समय निकाल पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं जरूर निकाल लेंगे, आप इन्फॉर्म कर देना, मैं आ जाऊंगा सर। थैंक यू बुद्धाराम जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और फिर मिलते हैं अपन हिंदुस्तान में। ओके सर, थैंक यू। बुद्धाराम जी, हमने जो आपका पिछला इंटरव्यू लिया था और जो इंटरव्यू आज हम ले रहे हैं, उस बीच लगभग 4 साल बीत चुके हैं। और इन 4 सालों में आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए होंगे। आप उन कुछ परिवर्तनों को क्या हमारे साथ बांटेंगे? शुरू में तो सर मैं बहुत घबरा गया था और जीने की उम्मीदें छोड़ चुका था, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि HIV मेरी ज़िंदगी में एक वरदान बन के आया और उसकी वजह से मैं गुरुदेव से जुड़ गया और मुझे सत्य का पता चला, नहीं तो मैं इस सत्य का पता मुझे नहीं चल पाता। बुद्धाराम जी, क्या आप इन दिनों किसी भी तरह की दवाइयों पर हैं? एलोपैथिक, होम्योपैथिक या फिर आयुर्वेदिक? बीच में ट्रेनिंग में 2-3 महीने मैंने दवाई ली थी, बीच में ध्यान और नाम जप नहीं हो पा रहा था, उसके बाद फिर बंद कर दिया। अभी मैं कोई दवाई वगैरह नहीं ले रहा हूँ। इन 4 सालों में आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति में भी बहुत सारे अंतर आए होंगे। पहले से ज़्यादा और मजबूत हो गया हूँ मैं, मेंटली भी और फिजिकली भी। फिजिकल तो अभी ट्रेनिंग में हमारे जो 10 किलोमीटर दौड़ होती थी वीकली, मैं 44-43 मिनट में क्लियर कर लेता था। और मेंटली भी जो याददाश्त वगैरह है पहले से अभी ज़्यादा तेज हो गई है मेरी। बुद्धाराम जी, आप इन दिनों किस तरह का काम कर रहे हैं और क्या नौकरी कर रहे हैं आप? और जिस ट्रेनिंग की अभी आपने व्याख्या करी, अगर आप हमें उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दें, थोड़ा बताएं उसके बारे में, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। नेवी से मैं अगस्त 2010 में रिटायर हो गया था, मेडिकल ग्राउंड पे मुझे रिटायर कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने तैयारी की और राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हूँ अभी। तो 12 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट करके और अभी चित्तौड़गढ़ में पोस्टिंग है मेरी, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हूँ। बुद्धाराम जी, आप HIV पॉजिटिव हैं और आप काफ़ी समय से कोई दवाइयाँ भी नहीं ले रहे हैं और आप डॉक्टर से भी कंसल्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्या आपको ऐसा पूर्ण विश्वास है कि ध्यान आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है? देखो सर, शुरू में तो मैं बहुत घबरा गया था और डॉक्टरों के वगैरह सभी के बहुत चक्कर काटे, लेकिन कहीं भी फ़ायदा नहीं हुआ मुझे। और फाइनली जो ध्यान से मुझे रिजल्ट मिलने लगे, वो रिजल्ट और कहीं भी नहीं है। और मुझे अभी किसी डॉक्टर वगैरह से कंसल्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं खुद, मुझे पूरा विश्वास है कि इस ध्यान करने से कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है।
बीमारी भी नहीं, चाहे कोई भी समस्या है, रेगुलर नाम जप और ध्यान करेंगे तो वो ठीक हो जाएगी। बुद्धाराम जी, क्या आपको लगता है कि ये विश्वास काफ़ी है आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए? मेरे लिए तो बहुत काफ़ी है सर, क्योंकि इसी के सहारे मैं आज जिंदा हूँ और आगे भी इसी विश्वास के सहारे ही रहूँगा। बुद्धाराम जी, जैसे आपने अभी बताया हमें कि आप दवाइयों पर निर्भर नहीं होना चाहते थे, तो आप क्या दवाइयों से दूर रहना चाहते थे या आपको ऐसा लगता था कि ध्यान ही इस बीमारी का इलाज है? नहीं, शुरू में सर मैंने डॉक्टर साहब ने बोला था दवाई के लिए, और दवाई वाले पेशेंटों की भी मैंने हालत देखी थी। फिर मैं वाले के वहाँ गया, उन्होंने भी बोला कि भाई लाइफ टाइम तक आपको दवाई खानी पड़ेगी, बाकी इसका कोई और इलाज नहीं है। तो यकीन, मुझे गुरुदेव सच बताऊं तो मुझे इन पर भी यकीन नहीं था, लेकिन मेरी मजबूरी ये थी कि मेरे सामने कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो मजबूरी बस मैंने ध्यान करना शुरू किया, लेकिन जो रिजल्ट मिलने लगे, उस रिजल्ट की वजह से मुझे अपने आप विश्वास होता गया कि भाई यहीं पर सब कुछ है और कहीं मुझे भागने की जरूरत नहीं है। बुद्धाराम जी, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप किस तरह का ध्यान करते हैं और आपके ध्यान करने का क्या तरीका है, और जब आप ध्यान करते हैं तो आपको अपने शरीर में या मन में किस तरह के परिवर्तन महसूस होते हैं? मैं सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग का सिद्धयोग दर्शन है, उनका रामलाल जी सियाग का ध्यान करता हूँ। उसमें गुरुदेव के फोटो को आज्ञा चक्र पे यहाँ मन में सोचता हूँ और मन में जो गुरुदेव मंत्र बताते हैं उसका जाप करता हूँ। उसके बाद वैसे तो अभी मेरा चलते फिरते भी ध्यान लगता है, प्राणायाम होते हैं, और रेगुलर सुबह शाम मैं टाइम निकाल के 15 मिनट ध्यान करता हूँ। और अजपा चलता है, नाद सुनाई देती है और खेचरी मुद्रा लगती है। हर 10-15 मिनट बाद में अपने आप खेचरी मुद्रा लग जाएगी, जिसमें जीभ मेरी पलट के ऊपर तालू में चली जाती है। वहाँ से 2-3 बूंद ठंडा रस आता है और पूरी बॉडी में एक ठंडी वेव्स ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे आती है। ये जो अनुभव आपने हमारे साथ बांटे, जैसे कि आपकी जीभ तालू पर चिपक जाती है और आपकी शरीर में एक तरंग सी महसूस होती है आपको, और आपको नाद भी सुनाई देती है, इन असामान्य क्रियाओं को आपका दिमाग जो है किस तरह से ग्रहण करता है? मानसिक रूप से भी पहले तो सर मुझे ऐसा लगता था कि अभी मैं बचूंगा नहीं, लेकिन अभी बिल्कुल कभी भी मेरे माइंड में ये आता ही नहीं है कि मुझे ये प्रॉब्लम थी या मुझे ये बीमारी है तो क्या होगा। और अभी मुझे डिटेक्ट हुए लगभग 6 साल हो गए हैं। मेरी वाइफ आज भी नेगेटिव है। अभी डॉक्टर तो बोल रहे हैं कि भाई 6-7 महीने बाद में वो भी पॉजिटिव, लेकिन इनके आज भी नेगेटिव है। मैं हर 6-7 महीने बाद में टेस्ट करवा रहा हूँ। तो इस ध्यान से ऐसा कुछ हो रहा है कि उससे आगे भी नहीं मतलब फैल रहा है ये।